بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے بیوہ ہوئے 10 سال ہو گئے تھے۔ پھر اچانک میرا پیٹ پھولنے لگا۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر کہتی کہ تم حاملہ ہو۔ مجھے یاد آیا کہ میرا بھتیجا روزانہ مجھے دودھ پلاتا اور پھر مجھے بے ہوش کر دیتا یا پھر مجھے ہوش نہیں رہتی تھی۔ پھر 9 مہینے کے بعد یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بچہ تو میرے سامنے ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی اور جو کچھ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی اسے سننے کے بعد مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور جو رپورٹ میرے سامنے تھی اسے دیکھنے کے بعد مجھے اپنی بصیرتوں پہ بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، ایسی بات تھی جس کو نظر انداز کرنا میرے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ میں نے بار بار ڈاکٹر صاحبہ سے کہا کہ آپ دوبارہ میرا چیک اپ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری ضد پر ڈاکٹر صاحبہ نے پھر سے میرا چیک اپ کیا، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا کردار ان کی نظر میں بھی مشکوک ہو کر رہ گیا تھا۔ اب میں زمانے کو اور دنیا کو کیا جواب دوں گی؟ میں سوچ سوچ کر پریشان تھی۔ مجھے اپنے رب کو کیا جواب دینا ہے؟ وہ تو مجھے معلوم تھا کہ میں بے قصور ہوں، وہ سب جانتا تھا، لیکن میرے ساتھ یہ حادثہ کب اور کیسے پیش آیا مجھے خود بھی نہیں معلوم، اور وہ بھی اتنا بھیانک واقعہ، ایک تلخ اور غیر اخلاقی حقیقت۔ میں جلدی سے ڈاکٹر صاحبہ کے کلینک سے نکل آئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے گھر کی طرف ہوئی۔ گھر پہنچ کر مجھے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ طبیعت میری پہلے سے ہی بہت خراب تھی اور اسی طبیعت کو چیک کرانے کے لیے میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ گھر آئی تو سامنے میرا بھانجا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ خالہ صبح صبح کہاں چلی گئی تھی؟ میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے آپ نے چائے بنا کر نہیں دی۔ میں نے اپنے بھانجے کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا اور خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے کمرے میں اندھیرا کر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، کیا یہ میرے اپنے سگے بھانجے کی کارستانی تھی؟ میں ایک پاک وجود سے اب غلاظت کا ڈھیر بن چکی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کافی عرصے سے میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ کون میرے ساتھ یہ سب کرے گا؟ لیکن کہتے ہیں کہ گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھاتا ہے۔ مجھے اب یقین ہو چکا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرے بھانجے وسیم کا ہاتھ ہے۔ وسیم کی ماں اسے جنم دیتے ہی فوت ہو گئی تھی اور میں بے اولاد تھی۔ میں نے میرے شوہر سے کہا کہ ہم وسیم کو پالتے ہیں تو اس نے صاف منع کر دیا۔ اس لیے وسیم کافی عرصے تک تو میری والدہ کے پاس رہا، لیکن میرے شوہر کی وفات کے بعد جب میں تنہا ہو گئی تو میں وسیم کو اپنے ساتھ لے آئی۔ اس وقت اس کی عمر 15 سال تھی۔ آج مجھے بیوہ ہوئے 10 سال ہو چکے تھے اور وسیم 25 سال کا ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر تو آئی تھی، لیکن مجھے جلدی احساس ہو گیا تھا کہ وسیم کی حرکات و سکنات عام لڑکوں جیسی نہیں ہیں، لیکن اسے ساتھ رکھنا میری مجبوری تھی، کیونکہ والدہ اور شوہر کی وفات کے بعد میرا اب دنیا میں کوئی نہیں تھا اور وسیم کا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اس کی منفی عادات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ گھر میں رکھا۔ اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں؟ وسیم بے سہارا تھا، اس کے پاس گھر نہیں تھا اور میرے پاس میرے شوہر کا گھر تھا۔ میرے شوہر میں نقص تھا جس کی وجہ سے مجھے اولاد نہ ہو سکی، لیکن بیوہ ہونے کے بعد بھی میں نے دوسری شادی نہیں کی تھی، حالانکہ میں بہت حسین تھی۔ جب میں بیوہ ہوئی تو اس وقت میری عمر 27 سال تھی اور میرے کافی رشتے آئے، مگر میں نے سب کو منع کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں میرا زندگی اور دنیا سے دل اٹھ گیا تھا، مگر اب جو قیامت مجھ پر ٹوٹ پڑی تھی میں اس کے متعلق سوچ سوچ کر پریشان تھی۔ محلے بھر میں ایک نیک اور پارسا عورت کے نام سے جانی جاتی تھی۔ سب میری بہت عزت کرتے تھے، اور اب محلے والوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ نیک اور پارسا عورت کسی کے ناجائز بچے کی ماں بننے والی ہے، تو میری زمانے بھر میں کیا عزت رہ جائے گی؟ میں نے پچھلے 10 سالوں سے اس عزت کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا اور آج سب ختم ہو گیا۔ یہ سب کیسے ہو گیا مجھے کبھی علم نہیں تھا، لیکن مجھے شک وسیم پر تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ روزانہ رات کو دودھ کا گلاس لے کر میرے کمرے میں آ جاتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا کہ خالہ یہ دودھ پی لو، بہت کمزور ہو گئی ہو، میں نے اس میں بادام بھی ڈالا ہے، اس سے آپ کو اچھی نیند بھی آ جائے گی اور آپ کی صحت بھی بحال ہوگی۔ میں اسے اپنے بھانجے کی محبت سمجھ رہی تھی۔ پھر مسلسل سارا مہینہ وہ دودھ میں پیتی رہی اس کی خوشی کی خاطر، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ اس دودھ کو پینے کے بعد میں بہت گہری نیند میں چلی جاتی تھی یا پھر بے ہوش ہو جاتی تھی کہ میں صبح دیر سے اٹھتی تھی۔ اس دوران مجھے کئی بار وسیم پر شک ہوا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ محبت میں ایسا کرتا ہے، مجھے اس کی نیک نیتی پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اتنا بھی غلط نہیں ہو سکتا جتنا میں اسے سمجھ رہی ہوں۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا تھا اور میں سمجھ نہ پائی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے، میری طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے خود کو کمرے کا قیدی بنا دیا تھا، لیکن کام تو کرنا تھا، دنیا کو منہ دکھانا تھا۔ میرے محلے میں بہت دوستی تھی، سب خواتین آئے دن کوئی نہ کوئی گھر میں ڈیرا جما کر بیٹھ جاتی تھی۔ میں خود کو اس طرح سے قید نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد ایک نئی دنیا بسا رکھی تھی۔ محلے کی بچیوں کو میں قرآن پاک پڑھاتی تھی، لیکن 3 دن سے میں نے ان کو قرآن نہیں پڑھایا تھا۔ لیکن میں کب تک خود کو بند کر سکتی تھی اور کس سے کیا کہتی کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ بچیاں بار بار آ رہی تھیں سپارے لے کر، مجبوراً میں نے صحت خرابی کا بہانہ کر کے ان سے معذرت کر لی تھی۔
मेरी सेहत का सुनकर तो मोहल्ले की तमाम खवातीन मेरे घर आ गई और मेरे लिए परेशान थी और मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हें क्या हुआ है। अब मैं क्या बताऊं कि मुझे क्या हुआ है। ये एक शर्मनाक हकीकत थी, उसका जिक्र मैं अपने फरिश्तों के सामने भी नहीं करना चाहती थी। मेरा दिल कर रहा था जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरा भांजा मुझे अजीब नजरों से देखने लगा था, बार बार पूछता कि आपको क्या हुआ है। मैं उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देती थी। उसने नोट कर लिया था कि मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ। अभी मैं अपने भांजे को कुछ कहना नहीं चाहती थी, मामले की तह तक पहुँचना चाहती थी कि मेरे साथ ये सब किसने किया है, कौन कसूरवार है। जब तक मुझे सही इंसान का पता नहीं चल जाता है तब तक कुछ भी कहना मामले को खराब कर सकता है। यूं तो मेरी उम्र 37 साल थी, लेकिन मैं दिखने में अपनी उम्र से 10 साल छोटी लगती थी। मैं खूबसूरत भी थी। अगर जमाने भर में ये बात फैल गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सब यही सोचेंगे कि ये कहीं पर अपनी इज्जत को खराब कर आई है। फिर मेरे साथ वही हुआ जो एक हामला औरत के साथ होता है। मुझे उल्टियां आने लगी थी, मेरा सर चकराने लगा था, मैं हर घंटे में उल्टी कर रही थी और मेरा भांजा ये सारा माजरा देख रहा था। मुझे उल्टियां करता देखकर वो मुझसे पूछ रहा था कि आपको क्या हुआ है। ये सवाल करते हुए उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, चमक नहीं बल्कि अजीब सी कमीनगी उसकी आंखों में उतर आई थी, या मुझे ऐसा लग रहा था। मेरा ज़ब्त यहाँ पर जवाब दे गया था और मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रिसीव किया, जिससे उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। मेरे इस तरह अचानक थप्पड़ मारने पर वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगा। उसने मुझे सवालिया नजरों से देखा। वो अनजान बन रहा था, जैसे उसे कुछ मालूम नहीं हो। मैंने कहा, घटिया इंसान, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मेरी तबीयत को जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम्हारी वजह से ये हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो, और कुछ नहीं तो मेरे और अपने माँ बहन रिश्ते का तो लिहाज किया होता कि मैं तुम्हारी खाला हूँ। मेरी बात सुनकर उसने मुझसे कहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया और आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं तो नेकी करके आपकी तबीयत का पूछ रहा था। मैंने कहा, तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरी तबीयत क्यों खराब है। रोजाना रात को मुझे दूध का गिलास इसलिए नहीं देते थे कि मेरी सेहत अच्छी हो जाए, बल्कि अपने गलीज मकसद के लिए देते थे। मैंने गुस्से से कहा तो उसने मेरी तरफ हैरत से देखा, फिर कहा कि मैं तो आपकी तरफ से परेशान था। आपकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। मैं वो दूध सिर्फ आपको ही नहीं देता था बल्कि खुद भी पीता था। मैंने कहा, उस दूध को पीने के बाद मैं बेहोश हो जाती थी या फिर गहरी नींद में चली जाती थी, और उसके बाद तुम मेरे साथ क्या करते रहे हो, उसका नतीजा अब मैं भुगत रही हूँ। मेरी बात पर वो सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा कि वो दूध पीने के बाद तो मैं भी गहरी नींद में चला जाता था। मैं सारी रात सुकून से सोता रहता था, मुझे कुछ होश नहीं रहता था और सुबह देर से आंख खुलती थी। मैंने उसे कहा कि तुम दूध में नशा आवर दवा देते रहे हो मुझे। तो उसने कहा कि अगर मैं आपको नशा आवर दवा देता तो फिर मैं खुद दूध क्यों पीता। मैंने उसे पूछा कि तुम वो दूध कहाँ से लाते थे। तो उसने कहा कि वो दूध मुझे मेरे दोस्त ने दिया था और मुझे कहा था कि उसको पीने के बाद मेरी सेहत अच्छी हो जाएगी। मेरी तबीयत खराब रहती थी, कमजोरी हो गई थी, इस वजह से मैंने सोचा वो दूध पी लेता हूँ। फिर मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि तुम्हारी खाला की भी सही नहीं है, उन्हें भी रोजाना रात को ये दूध पिलाया करो। मुझे तो बस आपकी सेहत की फिक्र थी, इसलिए खुद भी वो दूध पी लेता था और आपको भी पिलाता था। मैं खुद परेशान था कि इसे पीने के बाद मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आती है। मैंने सोचा जरूर इसमें कुछ ऐसा शामिल है कि इंसान को अच्छी नींद आ जाए ताकि वो सुबह हशाश बशाश होकर उठे। अपने भांजे की बात सुनकर मेरे सर पर जैसे आसमान गिर गया और पैरों तले से जमीन सिरक गई थी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। यानी कि मेरे भांजे के दोस्त ने उसे बेवकूफ बनाया और मेरी इज्जत के साथ खेलता रहा। मुझे सारा माजरा समझ में आ गया था। वो जिस दोस्त का नाम ले रहा था वो एक इंतहाई मशकूक लड़का था। वो मेरे भांजे का दोस्त था और सारा सारा दिन मेरे भांजे के कमरे में बैठा रहता था। मैंने उसे मना किया कि इस लड़के को यहाँ ना लाया करो, मगर वो मेरी नहीं सुनता था। कहता था ये मेरा बेहतरीन दोस्त है, इसके बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ। फिर मैं सो जाया करती थी और मेरा भांजा और उसका दोस्त सारी सारी रात जाग कर कभी बाहर निकल जाते थे तो कभी घर पे ही बैठे ताश खेलते थे। मैंने सोचा मुझे अपने भांजे के मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। वो जिसे चाहे दोस्त बनाए, मेरा काम था उसे मना करना। उसने मेरी बात नहीं मानी, फिर मैंने भी उसके मुतालिक सोचना छोड़ दिया। लेकिन अब जो कुछ भी हुआ था वो उसी लड़के की वजह से हुआ था। मैंने अपने भांजे को सारी हकीकत बता दी। मैंने उसे कहा कि तुम्हारा दोस्त मुझे और तुम्हें दूध में नशावर दवा पिलाकर बेहोश कर देता था, फिर उसके बाद मेरे साथ बदफेली करता था। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि उसके साथ दोस्ती ना रखो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज ये सब कुछ हो गया। मेरी बात सुनकर वसीम के सर पर खून सवार हो गया। उसने फौरन से पिस्टल निकाला और बाहर की जानिब भागने लगा अपने दोस्त को जान से मारने के लिए। मैंने उसे रोक लिया कि खून खराबे से कोई फायदा नहीं होगा, इज्जत तो पहले ही चली गई है, फिर तुम जेल चले जाओगे। जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है। तुमने मेरी बातों पर कान नहीं धरे और गलत सोहबत इख्तियार की। तुम अपने दोस्त के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते थे, अब देखो कैसे उसने हमें बर्बाद कर दिया। मैंने कहा और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे कहा कि पहले तुम्हारे होते हुए ही मुझ पर इतनी मुसीबत आ गई है, अगर तुम जेल चले गए तो फिर मेरा क्या होगा। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे रोका
मुझे अपने अल्फाजों पर शर्मिंदगी हो रही थी और दुख भी हो रहा था कि मैंने अपने सगे भांजे को किस कदर गलत समझा। माँ बाप होते हैं तो बच्चे उनकी बात मान लेते हैं, लेकिन जिनके माँ बाप नहीं होते वो बच्चे किसी की नहीं सुनते। मैंने शुरू से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। आज अगर उसकी माँ जिंदा होती और उसे उस लड़के से मिलने से मना करती और वो यकीनन उसकी बात मान लेता, या फिर उसका बाप होता तो उसकी भी मान लेते, लेकिन ये यतीम और मिस्कीन बच्चे हकीकी मानों में रुल जाते हैं। उस दिन तो मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन वो सोच सोच कर पागल हो रहा था। उसने मुझसे कहा कि हॉस्पिटल चलें और ये बच्चा ज़ाया करवा दें। मैंने कहा मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकती, अब जो भी है मुझे अल्लाह की मदद का इंतजार है। वो मेरे लिए जो फैसला फरमाएगा मैं उसकी तरफ देख रही हूँ। मेरी बात पर उसे गुस्सा आ गया था। उसकी गैरत जाग चुकी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर उसने कोई दवा लाकर मुझे खाने में मिलाकर दी। वो बच्चा ज़ाया करने वाली दवा थी। मुझे नहीं मालूम था कि उसने वो दवा मुझे दी है। उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और मेरा हमल गिर गया। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई और मेरा हमल ज़ाया हो गया, तब मुझे मालूम हो गया कि ये सब वसीम का काम है। वो मुझे हॉस्पिटल तक लेकर नहीं गया। मैं घर में ही दर्द में तड़पती रही। उसने कहा आपको हॉस्पिटल नहीं लेकर जाऊंगा, मेरी बदनामी होगी। मैंने कहा मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे दूर कहीं हॉस्पिटल में ले जाओ, जहाँ ना तो मैं कोई जानता हूँ ना मुझे। उसे मुझ पर तरस आ गया। वो दूर किसी इलाके में मुझे लेकर आया और मुझे बुर्का पहना दिया कि कोई मुझे पहचान न सके। वहाँ पर 2 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट रही। फिर मेरी सेहत ठीक हुई तो वो मुझे घर ले आया और उसने कहा कि हम ये मोहल्ला हमेशा के लिए छोड़ देंगे। मैंने दुख से कहा कि अब जगह बदलने से क्या फायदा है, मेरा नुकसान तो तुमने करवा दिया, वो भी अपने दोस्त के हाथों। उसने जिद की तो हमने मोहल्ला छोड़ दिया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और हम रातों रात उस मोहल्ले से चलते बने। हमने दूसरे शहर में आकर बसेरा कर लिया था, जहाँ हमें कोई नहीं जानता था। मुझे लग रहा था कि वसीम खामोश हो गया है, लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी। मुझे दूसरे शहर छोड़कर फिर वो वापस चला गया और उसने अपने दोस्त को जान से मार दिया। उसने इतनी सफाई से ये काम किया और रातों रात वापस घर आ गया। सुबह मुझे किसी जरिए से उसके दोस्त के कत्ल की खबर मिली और पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। मैंने वसीम से कहा क्या ये तुमने किया है? तो उसने कहा कि हाँ, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मेरी इज्जत पर हाथ डालने वाले शख्स को मैं जिंदा नहीं देख सकता था। पता नहीं क्यों उसकी मौत की खबर सुनकर मुझे सुकून मिला था, जिसने मुझे बर्बाद किया। आज वो भी जहन्नुम की आग में जल रहा होगा। आज इतने अरसे बाद मैं सोच रही हूँ कि काश मैं दूसरी शादी कर लेती, उसी वक्त जब मैं बेवा हुई थी। कैसे मैंने सोच लिया था कि ये पहाड़ जैसी जिंदगी मैं अकेले गुजार लूंगी अपने एक छोटे से भांजे के आश्रय पर। इसलिए हमारा मजहब हुक्म देता है औरत को दूसरी शादी करने का। जो तहफ़्फ़ुज़ शौहर दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकता, चाहे वो भाई हो या भांजा हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल मेरी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।